करना होता है। तो इसलिए हम इस आज वाले लेक्चर में जैसे कि हमने यूनिट नंबर 2 को कंप्लीट कर लिए हैं, तो हम यूनिट नंबर 3 की रीडिंग स्टार्ट कर लेंगे। यूनिट नंबर 3 का थोड़ा सा काम हम इस लेक्चर में ऐड करेंगे, बाकी जो होगा वो नेक्स्ट कमिंग लेक्चर में आएगा, ठीक है। यूनिट नंबर 3 इज आ साइंटिस्ट कम्स टू स्कूल। You will complete this reading with the help of your parents of unit number 3. In this unit is about a scientist. You know that who is scientist, who was scientist जो होते हैं वो कौन होते हैं, आपको पता है। जो साइंटिस्ट होते हैं वो मुख्तलिफ़ चीज़ें ईजाद करते हैं, ठीक है। जैसे कि शुरू से तो लाइट नहीं थी, शुरू से बल्ब नहीं थे, शुरू से ये पंखे के नहीं थे, तो ये सब कुछ जो बनाने वाले होते हैं उनको हम साइंटिस्ट कहते हैं। ये यूनिट नंबर 3 है, ये भी एक साइंटिस्ट के बारे में है जो कि बच्चों को ऑयल के बारे में बताता है कि ऑयल मतलब कहाँ से हासिल होता है, इसके क्या क्या यूजेस हैं। तो दैट्स यू विल कंप्लीट दिस रीडिंग। आफ्टर कंप्लीट द रीडिंग यू विल राइट द words meaning on notebook. For writing of word meaning unit number 3, first of all you will arrange a page like this, mention margin line, mention date and day like this. Unit number 3, a scientist comes to school. Topic is words meaning. You will draw a margin line in the center of the page and your page should be arranged same like this page. And your writing should be also neat. Words, meanings, first, second, third, fourth, 5, 6, 7, 8. In this unit we will learn and write 8 words meaning. Number 1 is scientist. Scientist means साइंसदान। Invented means ईजाद किया। Scrubbed means साफ किया। Number 4 entered means दाखिल हुआ। नंबर 5 एक्सपेंसिव में महंगा। नंबर 6 गैदर्ड में इकट्ठे हुए। नंबर 7 मोड में काटा। नंबर 8 ग्रेटेड में मिले। आफ्टर कंप्लीट द राइटिंग ऑफ दिस वर्ड्स मीनिंग यू विल लर्न दिस वर्ड्स मीनिंग ऑल्सो, देन यू विल गिव अ टेस्ट टू योर पेरेंट्स। दिस लेक्चर इज enough now, so Allah Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. As you know that you have completed the reading of unit number 3 and also learn the words meaning. So today we will learn and write the question answer of unit number 3. First of all, you will arrange your notebook page like this. Mention date and day and margin line. Then unit number 3, topic question answer. Question number 1 is, who was Mr. Khan? Mr. Khan कौन था? Mr. Khan was a scientist. You will write this question answer same like this, okay. For the first question you will arrange question number 1 in the center of the line, then you will start the writing of question like this. Then in the center of the line you will write answer, then you will write the complete answer. Mr. Khan was a scientist. Next, question number 2, what was the name of the principal? Answer is, the name of principal was Mr. Sohail. The name of principal was Mr. Sohail. Question number 3 is, what do scientists do? Scientist invents many new things. मतलब कि साइंटिस्ट कौन होते हैं? साइंटिस्ट वो होते हैं जो न्यू चीज़ें जो होती हैं, न्यू थिंग्स जो होती हैं वो बनाते हैं, उनको ईजाद करता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज़, वेयर इज़ ऑयल फाउंड? ये आप लोगों ने रीडिंग की है इस यूनिट की, तो वहाँ से आपको पता चल गया होगा कि जब मिस्टर खान ने क्वेश्चन किया था 2 क्लास में जाके
कि ऑयल, वेयर इज़ ऑयल फाउंड, तो एक बच्चे ने उसका आंसर दिया था ऑयल इज़ फाउंड अंडरग्राउंड। देन आंसर इज़ ऑयल इज़ फाउंड अंडरग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ वाई शुड वी यूज़ आवर कार्स केयरफुली। हमें अपनी कार्स, अपनी गाड़ियाँ केयरफुली इस्तेमाल क्यों करनी चाहिए। आंसर इज़ बिकॉज पेट्रोल इज़ वेरी एक्सपेंसिव। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ व्हाट डज द सन गिव टू द अर्थ। आंसर इज़ द सन गिव्स एनर्जी टू द अर्थ। After complete the writing of question answer, you will open your workbook of unit number 3. Unit number 3, a scientist comes to school. Vocabulary. Activity number A is pick out one word from the lesson which rhyme with the following words and write 2 of your own. इसका मतलब है कि आपने ये जो words दिए गए हैं इनमें से rhyming word एक लेने हैं जो कि आपके चैप्टर में दिया गया हो, बाकी 2 जो हैं वो अपनी मर्जी से राइट कर सकते हैं। लाइक दिस ब्रीम, ट्रिम, स्लिम, विम, रब, ठब, कब, सब, वेंट, ट्रेंट, रेंट, सेंट। ओके। देन एक्टिविटी बी इज़ मैच द ऑपोजिट्स। ये बॉक्स के अंदर वर्ड्स दिए हुए हैं और उनके आगे सर्कल्स में उनके ऑपोजिट्स दिए हुए हैं। आपने वर्ड्स को उनके ऑपोजिट्स के साथ मैच करना है। लाइक दिस फ्रेश, स्टेल, लॉन्ग, शॉर्ट, एंटर, एग्जिट, अंडर, ओवर, एक्सपेंसिव, चीप, विस्पर, शाउट, केयरफुल, केयरलेस। नेक्स्ट एक्टिविटी इज सी In the box are parts of a car and a bicycle. Put them in the correct space below. ये बॉक्स के अंदर कुछ जो वर्ड्स दिए हुए हैं ये पार्ट्स नेम हैं कार के और बाईसाइकिल के। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इनमें से जो पार्ट्स कार्स के हैं वो आपने इस वाले बॉक्स में राइट कर देने हैं नेम, जो साइकिल में होते हैं वो इस वाले बॉक्स में आ जाएंगे, और ऐसे भी कुछ पार्ट्स होंगे मतलब कि जो साइकिल में भी इस्तेमाल होते हैं और कार में भी, तो वो सेंटर में यहाँ आ जाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी डी, राइट द नेम ऑफ थिंग्स इन योर हाउस विच मेक अ नॉइस। ये यहाँ आपने ऐसी 3-4 चीज़ों के नाम लिखने हैं जो आपके घर में हैं और जिनको हम इस्तेमाल करते हैं तो तब उनका बहुत ज़्यादा शोर होता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। लाइक जैसे टीवी, वॉशिंग मशीन हो गई, जनरेटर हो गया, मोटर हो गई, इस तरह। नंबर ई, मेक एज मैनी स्मॉल वर्ड्स एज यू कैन फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। ये एक्टिविटी आप पिछले यूनिट्स में भी कर चुके हैं कि एक वर्ड दिया होता है उससे कोई भी आप लोगों ने छोटे छोटे मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने होते हैं अपनी तरफ से। You can write these words also and you can make some other also. Okay, next activity is F. Put the name of these vehicles in the correct column below. ये कुछ vehicles, कुछ ट्रांसपोर्ट जो होती हैं उनकी पिक्स दी हुई हैं, उनमें से जो इनमें हम पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, जो पेट्रोल की हेल्प से चलती हैं, उनको हमने कॉलम 1 में राइट कर देना है। ठीक है, और जो पेट्रोल के बगैर इस्तेमाल होती हैं, पेट्रोल के बगैर चलती हैं, उसको दूसरी साइड पे राइट कर देना। ये मैंने ऊपर नंबर्स राइट कर दिए, जिन पे नंबर 1 लिखा है वो पेट्रोल से चलने वाली हैं, उनको नंबर 1 में राइट कर देना है और 2 से चलने वाली नंबर 2 में। नेक्स्ट एक्टिविटी जो है वो है मैचिंग। मैच द वर्ड्स इन द बॉक्स विद द करेक्ट पिक्चर्स। हेयर आर सम वर्ड्स and some pictures. According to these words, we will match these pictures with their words. Like, here is a man shouting. We will match like this: shout, shout, move, काटना, shake, handshake करना,
this and same like this you will complete this activity. On the next page, here is the use of is or are. Fill in the blanks with is or and are. तो बेटा इसमें आप लोग ये बात ज़हन में रखिएगा, जो सिंगुलर चीज़ें होती हैं, सिंगुलर नाउन होते हैं, सिंगल थिंग्स होती हैं, उनके साथ हम इज़ यूज़ करते हैं, और जो प्लूरल होती हैं मतलब एक से ज़्यादा होती हैं, उनके साथ हम आर का यूज़ करते हैं. इज़ और आर जो है ये हेल्पिंग वर्ब है टू कंप्लीट द सेंटेंस लाइक दिस. द बॉय इज़, बॉय सिंगुलर नाउन है, सो दैट्स वाई द बॉय इज़ क्लाइंबिंग द ट्री. The boy is climbing the tree. The children are going to the mosque. Moin is reading the newspaper. They are watch the Salatul Tarawih on TV. This jug is made of plastic. The elephant is a huge animal. Mirpur Khas is an important town of Sindh. Anam and Aman are coloring the picture. On the next page, activity of A and N. Fill in the blanks using A and N. ये A और N का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? Almost we use N with the vowel words. All the words that start the sound of vowels. वैसे तो vowels होते हैं A, E. These are A, E, I, O, U. अमूमन वैसे ये वोवल्स होते हैं, लेकिन कभी कभी ये अपनी साउंड चेंज कर लेते हैं. जब इनकी साउंड आ या अलिफ इन उर्दू, आ इन इंग्लिश, these alphabets when produce the sound of A in English and Alif in Urdu, then we will use N with these words. Okay, for example के कभी ये जो U होता है इसकी साउंड है आ. क्या साउंड है? आ. जब ये U आ की साउंड देते हैं अम्ब्रेला, तब हम N यूज करते हैं. जब ये U की आवाज़ देते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी, तो तब हम उसके साथ ए यूज़ करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस एक्टिविटी. द स्पैरो इज अ स्मॉल बर्ड. आई हैव अ बुक एंड अ पेंसिल. शी इज होल्डिंग एन एग एंड अ स्पून. Anila is eating an ice cream. He is buying an umbrella.